Hello engineers, good morning. We are going to start with the same topic which was done in the last lecture, and that is slope of the line. Slope is very important topic of this chapter or the geometry or coordinate geometry. Slope of the line. There are three ways to define the slope. First way is this. According to book, the name of this topic is that if you have 2 points of a line, then the definition for slope is this: difference of y coordinate upon difference of x coordinate. समझे ना? अगर आपके पास लाइन के 2 पॉइंट्स है किसी लाइन के, सो बाय दिस फॉर्मूला यू कैन डिटरमाइन स्लोप ऑफ लाइन. आपको ये पता है कि let a x1 y1 and b x2 y2 be 2 points of the line. If line is non vertical, आपको पता है कि भाई वर्टिकल लाइन को स्लोप नहीं मिलता है, वो भी हमने बात की हुई है, डिस्कस हो चुका है. सो इफ लाइन इज नॉन वर्टिकल मीन्स इट्स x कोऑर्डिनेट आर नॉट इक्वल, देन द डेफिनेशन फॉर स्लोप इज m इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट इन सेम ऑर्डर. यहां पर भी ऐसे आएगा, difference of y coordinate upon difference of x coordinate in same order. Same order का मतलब ये होता है कि जब आप y2 minus y1 लोगे, कंपलसरी आपको x2 minus x1 लेना है, और अगर आपने y1 minus y2 लिया, then you have to take x1 minus x2, meaning remains same. So this is the definition for the slope of the non-vertical line. अब आगे 2 पॉइंट्स भी हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं. फर्स्ट, भाई y1 और y2 इक्वल हो गए. व्हेन y1 एंड y2 आर इक्वल, y कोऑर्डिनेट तब इक्वल बनेगा जब लाइन हॉरिजॉन्टल होगी. लाइन हॉरिजॉन्टल होगी तो ये इक्वल बनेगा, ये इक्वल बनेगा तो न्यूमरेटर 0 होगा. व्हेन न्यूमरेटर इज 0 तो द वैल्यू ऑफ होल टर्म विल बी 0. तो एक पॉइंट हमारे पास ये भी है कि स्लोप ऑफ horizontal line is 0. Slope of horizontal line is 0. Second point, if line is vertical, then x1 will be x2. x1 और x2 इक्वल हो गए, so denominator will be 0, and when denominator is 0, the term will be undefined. तो slope of vertical line is infinitive or undefined. Infinitive, not defined, undefined, both you can say. So this is the first way for the slope of the line. Now we have second way. Now see, we have, there is a core topic for the slope of line. Slope of line के लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, angle of a line with positive x axis. Angle of a line with positive x axis. चलो, suppose line intersect x axis at point A. Suppose line intersect x axis at point A. Let P be the point. Let P be the point of line in the half plane above x axis and
measure of angle PAX, measure of angle PAX equal to theta, then theta is said to be angle of a line with positive x axis. Then theta is said to be angle of line with पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बराबर याद रखना, जिसकी हमें नेक्स्ट वाले टॉपिक में जरूरत पड़ने वाली है। अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, देन दिस विल बी एंगल विथ नेगेटिव एक्स एक्सिस। जबकि बुक में इसकी खास जरूरत पड़ती नहीं है, पर कभी किसी मैथमेटिशियन ने मानो कि आपको क्वेश्चन पूछ लिया या ये वर्ड दिया है, तो आपको समझ में आना चाहिए इट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इट इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इस साइड में जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और अपोजिट साइड में जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल विद नेगेटिव एक्स एक्सिस। So by using this theory, we can define slope in another way. Now slope of the line in another way. If theta is an angle formed by line with positive x-axis, मानो कि हमारे पास दो पॉइंट्स नहीं है, but theta given है, and what is theta? Theta is an angle made by line with positive x-axis. So how can we define the slope of the line, right? So direct we will write, but फिर भी मैं आपको हल्की सी उसकी प्रूफ दूंगा, यानी पता चले कि in which way it is being. If line is vertical, तो ये जो थीटा होगा वो पाई बाई 2 होगा, क्योंकि x एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा दैट विल बी पाई बाई 2, और लाइन वर्टिकल है तो स्लोप तो मिलने वाला है नहीं। तो मैं ये पॉइंट यहीं से डिटेक्ट कर दूंगा कि हमारी जो लाइन है दैट इज नॉन वर्टिकल। इफ थीटा इज एन एंगल, इफ थीटा इज एन एंगल फॉर्म्ड बाय line with positive x-axis and theta is not equal to pi by 2, then slope of line m is equal to tan theta. Slope of line will be m is equal to tan theta. ये स्लोप बनेगा। मतलब if theta is an angle formed by line with positive x-axis, then the tangent value of that theta will be the slope of that line. ये जो टेंजेंट वैल्यू मिलेगी दैट विल बी द स्लोप ऑफ द लाइन। अब यहां से दो तीन ये तो हमें एक्सेप्ट कर ही लेना है, अभी मैं आपको प्रूव करके दे रहा हूं यहाँ पे, बट ये आपको याद रखना है कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स नहीं है बट यू हैव एन एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो व्हेन यू अप्लाई tan थीटा वेयर थीटा इज एन एंगल, तो आपको मिलेगा स्लोप ऑफ दैट लाइन। अब यहां से दो तीन चीज हमें डिस्कस करनी है। फर्स्ट पॉइंट, अगर मान लो कि हमारी लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो उसका जो x एक्सिस के साथ एंगल बनेगा दैट विल बी 0। इफ लाइन इज हॉरिजॉन्टल, if line is horizontal, then
theta will be 0, and therefore slope m. अच्छा, m is a notation for the slope. M is a notation for the slope, so m is equal to tan 0 equal to 0. Slope will be 0. तो यहां पर भी तो हमने देखा है कि स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0. तो यही पॉइंट यहां से भी डिराइव हो रहा है. ये अनदर वे है, ये दैट इज अनदर वे. सेकेंड पॉइंट, if line is vertical, then अगर वर्टिकल लाइन है तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 होगा, जो यहाँ पे मैंने लिया था. अब हम लेंगे यहाँ पे, देन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2. देयरफॉर स्लोप m is equal to tan pi by 2 is infinitive, means undefined. Third one, if line is neither vertical nor horizontal, horizontal भी नहीं है, vertical भी नहीं है, तो भी हमारे पास दो केस बनेंगे कि थीटा अक्यूट एंगल बनेगा या ऑप्टिस एंगल बनेगा. व्हेन थीटा इज अक्यूट एंगल, इफ 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 2, whenever theta is acute angle, then m equal to tan theta will be greater than 0. जैसे ही थीटा acute एंगल होगा, स्लोप विल बी पॉजिटिव, याद रखना बराबर. एंड इफ थीटा इज ऑप्टिस एंगल, सो फोर्थ केस एंड लास्ट, इफ पाई बाय 2 लेस देन थीटा लेस देन पाई, then m equal to tan theta will be less than 0. तो स्लोप में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव, में भी 0, में भी अनडिफाइंड. ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं यहाँ पे. तो स्लोप के लिए हमारे पास दो वे हो गए. देयर आर 2 वेज, टोटल देयर आर 3 वेज. जो थर्ड है वो जंप करके आगे मिलने वाला है हमको आफ्टर सम थियरीज, आफ्टर सम एक्सरसाइज. बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक, if we have 2 points of a line, then difference of y coordinate upon difference of x coordinate will be the slope of the line. चलो मान लो कि पॉइंट्स नहीं दिए हैं हमें, एंड इफ वी हैव एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो द टेंजेंट वैल्यू विल बी स्लोप ऑफ दैट लाइन. सो ये दो फॉर्मूला तो आपको याद रखनी है. प्लीज इतना लिख लो. सो आगे चले. न्यू थियरी, कंडीशन फॉर पैरेललिज्म ऑफ 2 लाइंस यूजिंग स्लोप्स. अब स्लोप की हेल्प से हमें और भी थियरीज प्रूव करनी है कि भाई व्हेन वी कैन से द लाइंस आर पैरेलल. भाई लोअर स्टैंडर्ड में तो हम लाइंस बना के दिखाते थे कि दीज आर पैरेलल लाइंस, कोई कंडीशन नहीं थी, राइट. पर अब हम विदाउट पिक्चर, विदाउट देयर ग्राफ, विदाउट ड्राइंग द लाइंस, वी कैन से कि लाइंस आर पैरेलल और नॉट. तो उसी के लिए हमें कंडीशन यहाँ पे डिफाइन करनी है. Whenever the lines are horizontal, they will be parallel. If lines are vertical, they will be parallel. But if lines neither vertical nor horizontal, so it is not easy to say they are parallel lines. It is not easy to say they are parallel lines. भाई दोनों horizontal है, easily we can say. Both are vertical, easily we can say. But when they are non-vertical or non-horizontal, तो इतना आसान नहीं है बोलना कि दो बुद्ध लाइंस आर पैरेलल. तो किस वे में हम ये प्रूव कर सकते हैं? तो सपोज L1 एंड L2 आर 2 पैरेलल लाइंस. द एंगल विद पॉजिटिव x एक्सिस ऑफ L1 इज θ1,
The angle with positive x-axis of L2 is theta 2. Suppose slope of L1 is m1 and slope of L2 is m2. Therefore, यहाँ पे बनेगा m1 is tan theta 1 and m2 is tan theta 2 by the previous theory. कि अगर theta 1 and theta 2 are angle formed by lines with positive x-axis, therefore the value of tangent will be the slope according to previous theory. तो ये दोनों के स्लोप्स हो गए. अभी किस तरह से प्रूव करेंगे? तो देखो, if L1 is parallel to L2, then double implies theta 1 will be theta 2. Here x-axis will be the transversal and it intersects both the parallel lines. Therefore, these two angles will be the same. So theta 1 is theta 2. Now by taking tangent on both sides, so tan theta 1 is tan theta 2, but tan theta 1 is slope of the first line, tan theta 2 is slope of another line. So we can write double implies m1 is equal to m2. So this is the condition for the parallelism of two lines. If L1 and L2 are parallel, their slopes will be equal, and if slopes are equal, lines will be parallel. So this is the very important condition for the parallelism of two lines. Parallelism of two lines बराबर याद रखना. अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे. नो नीड टू ड्रॉ द लाइंस. लाइन ड्रॉ करने की हमें कोई जरूरत नहीं है. ओके, नेक्स्ट थियरी, condition for perpendicularity of two lines. Okay, if two lines are perpendicular, so what will be the condition? तो एक चीज मैं आपको ओरली बता दूं कि if one line is horizontal, another is vertical, then they will be particular. No need of any condition. Whenever the one line is horizontal, another line is vertical, no need of any condition. If lines are neither vertical nor horizontal, then what? If lines are neither vertical nor horizontal, then what? So let us see. There are two cases. In first case, this is L1 and this is L2. Means angle of L1 with positive x-axis is acute angle, and in another case I am taking is greater than pi by 2 means obtuse angle, right? अब ये थोड़ा समझ ले डायग्राम कि भी क्या बोल रहा है. देखो, here theta 1 is an angle formed by line L1, theta 2 is an angle formed by line L2 with positive x-axis. If it is theta 2, both these two angles will be supplementary. तो ये बनेगा 180 minus theta 2 means pi minus theta 2. ये तो 90 है ही, because both the lines are perpendicular. देखो यहाँ पे ये theta 2 है जबकि ये theta 1 है. So this will be 180 minus theta 1 means pi minus theta 1, because these two are supplementary angles. इसलिए इनका एडिशन ये होगा. अब यहाँ से मुझे कुछ कंडीशन मिल रही है. कैसे? We know that sum of all the angles of triangle is 180. ये कंडीशन हमारे पास है. Sum of all the angles of triangle is 180. तो देखो यहां से it is 90 means pi by 2 plus theta 1 plus pi minus theta 2 is pi. Sum will be pi. चलो पाई पाई चल बसा, पाई पाई चल बसा. अब आप थीटा पाई बाय 2 और थीटा 2 को सामने ले जाओ. So this condition will be theta 1 is equal to pi by 2 minus होगा, minus pi by 2 plus theta 2 minus pi by 2 plus theta 2. Now for the second case here, this angle is 90 means pi by 2.
it is theta 2, it is pi minus theta 1, sorry, it is pi minus theta 1, sum is pi। तो मैंने यहां से पाई पाई कट किए, अब मैं थीटा 1 को सामने ले जाऊंगा, सो थीटा 1 विल बी पाई बाई 2 प्लस थीटा 2। तो देखो मैं दोनों केस को मर्ज कर दूं, इफ आई मर्ज बोथ द केसेस, दिस विल बी थीटा 1 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, मीन्स प्लस और माइनस पाई बाई 2, और दोनों में थीटा 2 प्लस है, सो प्लस थीटा 2। अब हमारी थियरी खत्म हो गई, ये आधी प्रूफ मैंने आपको दे दी। कैसे? नाउ टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड्स, because whenever theta 1 is an angle formed by line with positive x axis, tan theta 1 will be the slope. Suppose slope of L1 is m1, slope of L2 is m2, m2 m1 आप जानते हो। चलो taking tangent on both sides, so that implies tan theta 1 इक्वल टू tan प्लस और माइनस पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 वाली थियरी, पाई बाई 2 रूल जो मैंने आपको समझाया था, वो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, देन इट विल बी माइनस कॉट थीटा 2। माइनस कॉट थीटा 2 सामने आएगा तो बनेगा कॉट tan थीटा 2, सो इट विल बी tan थीटा 2, and it is minus 1. But tan theta 1 is slope of L1, tan theta 2 is slope of L2, so sorry, double implies whenever, यहाँ पे implies लो, that implies m1 into m2 is minus 1। क्या कंडीशन बनी? If the lines are perpendicular, the product of their slopes will be minus 1. If product of their slopes is minus 1, then slope of both the lines will be opposite and reciprocal। तभी तो ये होगा कि अगर किसी एक लाइन का स्लोप 2/3 है तो दूसरी लाइन का स्लोप -3/2 होगा, तभी तो प्रोडक्ट -1 होगा। सो यहां से मैं ये कंडीशन लिख सकता हूं कि इफ L1 is perpendicular to L2, double implies in both way the product of their slopes is -1। It is also very important condition for the perpendicularity, and for parallelism, L1 is parallel to L2, double implies m1 is equal to m2। तो हमारे पास दो कंडीशन आ गई, एक पैरेललिज्म की और दूसरी परपेंडिकुलरिटी की। पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी कितना इजी है, क्लियर पॉइंट। ओके, न्यू थियरी, एंगल बिटवीन टू लाइंस। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, they will make two pair of vertically opposite angles, two pairs of vertically opposite angles। तो यहां से हमें कौन सा एंगल निकालना है? When two lines intersect each other, then pair of acute angles is called the angle between two lines। ये हमें एक्सेप्ट कर लेना है। ऑब्ट्यूस एंगल अपने आप मिलेगा, जो एक्यूट एंगल होगा वही हमें फॉर्मूला से मिलने वाला है, बराबर याद रखना, राइट। चलो हियर मैंने यहाँ टोटल 4 केसेस है हमारे पास, उसमें से 2 केसेस में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। दोनों केसेस में हमारे पास θ2 is greater than θ1 है। In both the cases we have θ2 is greater than θ1। तो देखो फर्स्ट केस, it is line L1, θ1 is an angle with positive x-axis, L2 θ2 is an angle, and it is an alpha which is intersecting angle। It is alpha which is intersecting angle। Here alpha is intersecting angle of two lines। Here alpha is
intersecting angle, and therefore alpha will be acute angle. ये आपको याद होना चाहिए, because by the formula we will get only the acute angle and then after that obtuse angle में हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वो दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, वो आपको पता है। तो दो केसेस कैसे हो गए, देखो θ1 छोटा है, θ2 बड़ा है, θ1 छोटा है, θ2 बड़ा है, बट स्टिल व्हाई दे आर डिफरेंट। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग एंगल है वो यहाँ बन रहा है, जबकि यहाँ पे यहाँ बन रहा है, बिकॉज ये ऑप्टिक्स हो गया, ये एक्यूट एंगल है, एंड वी आर फाइंडिंग एक्यूट एंगल। गेटिंग माय पॉइंट। तो अब देखो यहाँ से जो चीज मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ कि अगर ये θ2 है, देन दिस विल बी पाई माइनस θ2, because they are supplementary angles and sum of all three angles is pi. So alpha plus θ1 plus pi minus θ2 is pi. pi pi चल बसा, तो अल्फा क्या होगा, θ1 माइनस होगा, θ2 प्लस होगा। अच्छा यहाँ पे ये भी पाई माइनस, क्योंकि ये अल्फा, ये भी पाई माइनस। सो देखो पाई माइनस अल्फा प्लस θ1 प्लस पाई माइनस θ2 इज पाई। एक एक पाई चल बसा, सिर्फ अल्फा को सामने ले जाओ। सो अल्फा विल बी पाई प्लस θ1 माइनस θ2, पाई प्लस θ1 माइनस θ2। अब इन दोनों केसेस को अगर मैं मर्ज कर दूं तो इसके बाद में ये थियरी बनने वाली है हमारी कि tan अल्फा, when we take alpha tangent on both sides, tan alpha is mod tan θ1 minus θ2 by some rules। तो ये मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, सीधा ये स्टेप ले लिया, आपको इजी रहे इसके लिए। इतना इजी हो गया। चलो अभी हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमारी फॉर्मूला लगेगी। वी नो दैट tan अल्फा माइनस बीटा बी इक्वल टू मोड tan θ1 minus tan θ2 upon 1 plus tan θ1 into tan θ2। बट आपको इतना तो याद होगा कि if θ1 is an angle formed by line with positive x-axis, then tan θ1 will be slope, tan θ2 भी slope बनेगा। चलो L1 का slope हो गया m1, L2 का स्लोप सपोज है m2, तो डायरेक्ट वी कैन राइट मोड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 m1 इंटू m2। तो ये एक और फॉर्मूला हमारी हो गई tan अल्फा, वेयर अल्फा इज व्हाट, इंटरसेक्टिंग एंगल। सो tan अल्फा इक्वल टू मोड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये तीसरी थियरी आज की हमारी हो गई। बाय दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड इंटरसेक्टिंग एंगल। अगर हमारे पास दोनों लाइंस के स्लोप है, सो बाय दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड इंटरसेक्टिंग एंगल। मींस देयर इज रिलेशन बिटवीन थ्री टर्म्स अल्फा m1 एंड m2। अगर m1 एंड m2 आपके पास है तो आपको अल्फा मिलेगा। इफ यू हैव अल्फा एंड m1 यू कैन फाइंड m2, इफ यू हैव अल्फा एंड m2 यू कैन फाइंड m1। मतलब तीन में से कोई भी दो टर्म आपको दी होगी, तो बाय यूजिंग दोस टू टर्म्स यू कैन फाइंड द रिमेनिंग टर्म। सो ये तीन फॉर्मूले आपको बराबर ही याद रखनी है। देयर आर थ्री कंडीशंस, क्योंकि ये सारी थियरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो स्लोप की आज दो थियरी हमने देखी। स्लोप के लिए एक, when we have 2 points, तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। सेकंड, अगर हमारे पास पॉइंट्स नहीं है बट वी हैव एंगल विद पॉजिटिव x एक्सिस, सो tan थीटा विल बी द स्लोप ऑफ द लाइन। आफ्टर दैट कंडीशन फॉर पैरेललिज्म, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन intersecting angle. So all these formulae are very useful for the sums. So before 10.1 all the theories are completed. सारी theories यहाँ पे complete हो रही है।
तो ये सारी फॉर्मूले आपको प्रिपेयर करके आना है. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 10.1. तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा.